بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، یہ آخری پارٹ ہے ناگ دیوتا کا۔ پچھلے تمام پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو چلیے آج آخری پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادھر دونوں سپیرے سوچ رہے تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، پھنس گئے تھے پوری طرح۔ دادا پوتے تھے دونوں، اپنی جھوپڑیوں کو چھوڑ کر، اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر روزی کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن یہاں آ کر پھنس گئے تھے بیچارے۔ حادثے تو حادثے ہی ہوتے ہیں، وہ لڑکا بھی تو ناگ کو چھیڑ رہا تھا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اس میں ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ بہرحال گاڑی چلتی رہی، اور پھر جس شاندار گھر میں وہ داخل ہوئے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ مکان کے مالک مرزا مقدس ایک بہت بڑے صنعت کار، کروڑوں کی جائیداد تھی ان کی، جس کا تنہا وارث ان کا ایک بیٹا تھا جو سانپ کا شکار ہو گیا تھا۔ گھر میں کرام مچا ہوا تھا، لڑکے کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کی تصدیق کر دی، تدفین کی تیاری ہو رہی تھی، غسل دے دیا گیا۔ لڑکی کی میت ایک کمرے میں رکھی ہوئی تھی، چاروں طرف شور مچا ہوا تھا، عورتیں رو رہی تھی، مرد بھی رو رہے تھے۔ خود مرزا مقدس دھاڑے مار رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اب ان کی تمام محنتوں کا وارث کون ہوگا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے فون آیا تھا اور کچھ لوگ وہاں دوڑے چلے گئے تھے، لیکن بقیہ افراد بری طرح ناراض تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب جو فیملی ڈاکٹر تھے دوسرے سے کہہ رہے تھے، بات اصل میں یہ ہے کہ میں بھی اعتراض نہیں کر سکتا، میت کو جتنی جلدی دفنا دیا جائے اچھا ہوتا ہے، اور پھر سانپ کا کاٹا ہوا ہے، لاش گڑ سڑ جائے گی کہ اٹھانے والا اٹھا نہیں سکے گا۔ مرزا صاحب بلا وجہ تہمات میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا مردے بھی کبھی زندہ ہوتے ہیں؟ طبی طور پر بچہ مر چکا ہے اور یہ لوگ تماشا کر رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ والدین کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی بیوقوفی کی اطلاع مل گئی ہے اور یہ لوگ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ لیجئے، شاید وہ آ گئے۔ مجمع چھٹ گیا، جو لوگ سپیرے کو لینے گئے تھے وہ واپس آئے۔ پیچھے پیچھے پولیس کی گاڑی بھی آئی جس میں انسپکٹر موجود تھا، اس کے چہرے پر بھی بس ایسے ہی آثار نظر آ رہے تھے۔ بھلا آج کی دنیا میں کون اس بات پر یقین کرتا ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، یا سانپ نے اگر کسی نوجوان لڑکے کو کاٹا ہے تو کوئی دوسرا سانپ اسے ٹھیک بھی کر سکتا ہے، جبکہ طبی طور پر لڑکے کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے باوجود یہ تماشا ہو رہا تھا۔ بہرحال لوگوں کو تو تماشا پسند ہوتے ہیں۔ دونوں سپیرے کو نیچے اتارا گیا اور اس کے بعد پراتا کو۔ کسی کو یہ خاص اندازہ نہیں ہو رہا تھا، سب یہی سمجھ رہے تھے کہ عام سی بات ہے، لیکن حقیقتوں کو کون جانتا ہے۔ مرزا مقدس آگے آئے اور انہوں نے سپیروں سے کہا، میں تم دونوں کو سزائے موت دلوائے بغیر نہیں رہوں گا، یہ میرا عزم ہے، تم نے میرے گھر کا چراغ گر کیا ہے۔ دونوں سپیرے ہاتھ جوڑ کر مرزا مقدس کے قدموں میں گر گئے۔ صاحب جی، زندگی لینا دینا تو اللہ کا کام ہے، صاحب جی آپ ہمیں معاف کر دو، ساری غلطی ہماری نہیں، ہم تو دو پیسے کمانے کے لیے کھیل تماشا دکھا رہے تھے۔ آپ کے صاحبزادے، خبردار اپنے ناپاک منہ سے میرے بچے کا نام نہ لینا ظالمو، ختم کر دیا تم نے میرے بچے کو۔ صاحب جی آپ کا جو دل چاہے کر لو، ہم بھلا کسی کے دشمن تھوڑی ہیں، اور پھر ہم جیسے لوگ، ہم تو صاحب جی خود اپنے حالات کا شکار ہیں، آپ کی مرضی ہے صاحب جی، اگر موت اسی طرح لکھی ہے تو مر جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اب کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ؟ وہ صاحب جی، یہ بھیا جو ہے نا کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا علاج کر دے گا، باقی باتیں یہ بتائے گا۔ پراتا جو اب یہاں کے ماحول کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا بولا، لڑکی کی لاش کہاں ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، جادوگر ہو، ولی ہو، درویش ہو کون تم؟ میں پراتا ہوں، صرف پراتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا، اگر تم لوگ باتیں کرنا چاہتے ہو تو پہلے دل بھر کر مجھے اپنے سامنے بٹھاؤ اور اپنی پسند کی باتیں کر لو، اس کے بعد مجھے اس میت کے پاس لے چلو۔ ٹھیک ہے، مگر تم کرو گے کیا؟ بس جو بھی کر سکتا ہوں کروں گا۔ سپیرے اس موقع سے فائدہ اٹھانے لگے۔ بات تو یہ ہے جی کہ ہم تو بین بجائیں گے اور اس ناگ کو بلائیں گے جس نے آپ کے بیٹے کو کاٹا ہے، مگر وہ تو مار دیا گیا تھا۔ وہ جی اور بھی ناگ ہوتے ہیں، یہ سلا جادو منتر کی باتیں ہیں۔ پراتا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرزا مقدس نے کچھ سوچا، لوگ اب بھی ان ساری باتوں کو بلا بھرا کہہ رہے تھے، لیکن مرزا مقدس نے پراتا کو ساتھ لیا اور اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں میت رکھی ہوئی تھی۔ عورتیں دھاڑے مار رہی تھی۔ مرزا مقدس نے کہا، تم سب لوگ باہر نکل جاؤ اور یہاں سے دور چلے جاؤ، خبردار کوئی بھی عورت یہاں قریب نہ آئے۔ آخرکار تمام عورتوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، کمرے میں صرف لڑکے کی لاش رہ گئی۔ مرزا مقدس اور چند افراد یہاں موجود تھے، پولیس انسپکٹر بھی آیا تھا۔ آپ سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تم کیا کرو گے؟ انسپکٹر نے کہا، لیکن مرزا مقدس نے فوراً ہی دخل دیا، اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیجیے انسپکٹر صاحب۔ کتنی دیر میں تم فارغ ہو جاؤ گے؟ بس تھوڑی دیر میں، جب میں دروازہ بجاؤں تو آپ دروازہ کھول دیجیے گا۔ کیوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میاں
बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं, ये जो कुछ कहता है करने दीजिए। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, मिर्ज़ा मुक़द्दस बोले और वो सब लोग कमरे से बाहर निकल आए तो पराठा कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके लड़के के करीब पहुंच गया। वो खूबसूरत सा नौजवान लड़का था। उसका पूरा जिस्म नीला हो गया था, जख्म का निशान नजर आ रहा था जहां से सांप का ज़हर अंदर दाखिल हुआ था। 1000 साल की ज़्यादा उम्र का सांप जिसके सामने कोई भी सांप नहीं टिक सकता। पराठा ने इधर उधर देखकर सारे सुराख बंद कर दिए जहां से बाहर कोई झांक सकता था और इसके बाद वो अपनी जून बदलने लगा। थोड़ी देर के बाद एक इंतहाई लंबा चौड़ा जहरीला सांप वहां नजर आ रहा था। इसने लड़के के जख्म पर मुंह रख दिया और इसके बाद आन की आन में लड़के के जिस्म का सारा खून इसके बदन में मुंतकिल हो गया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी, मामूली सी बात थी पराठा के लिए। इसने खून में से जहर चूसकर बाकी खून इसी जख्म के रास्ते लड़के के जिस्म में मुंतकिल कर दिया। वो एक साफ व शफाफ खून था और थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा और इसके बाद इसने अपनी शख्सियत को फिर बदलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो एक बार फिर इंसान के रूप में आ गया। लेकिन अब लड़के के बदन में खून की सुर्खी दौड़ने लगी। इसका नीला पड़ा हुआ चेहरा और नीले पड़े हुए होठ आहिस्ता आहिस्ता गुलाबी होते जा रहे थे। बात यही पर ख़त्म नहीं होती। थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता लड़के के बदन में जुम्बश होने लगी। पराठा इसके पास मौजूद था। बाहर बहुत सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या सूरत हाल है। मिर्ज़ा मुक़द्दस भी इंतज़ार कर रहा था। चंद लम्हों के बाद लड़के ने कराहती आवाज़ में कहा, अब्बू, अम्मी, बाजी, कहाँ हैं आप सब लोग? पराठा के दिल में हमदर्दी जाग गई। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इंसान इसके सामने था जो मौत से ज़िंदगी की तरफ आया था। वो लड़के के करीब पहुंच गया और इसने कहा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, बाकी लोग कहाँ हैं? आओ मेरे साथ बाहर चलो। पराठा ने इसे अपने हाथ का सहारा पेश किया तो वह इसके हाथ का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। पराठा इसे साथ लिए हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। बाहर दोनों सपेरे मस्ती में आकर बीन बजा रहे थे। वो भी अपनी ज़िंदगी चाहते थे। अगर किसी तरह लड़का ठीक हो जाता तो इन्हें भी ज़िंदगी की नवीद मिल सकती थी। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, ज़िंदगी किसको प्यारी नहीं होती। दरवाज़ा खुला और जब पराठा नौजवान लड़के के साथ बाहर निकला तो ऐसी खामोशी तारी हो गई कि देखने वालों को यकीन न आए। सबके सब लड़के को पराठा के साथ देखकर पथरा गए। अलबत्ता दोनों सपेरे मुसलसल बीन बजा रहे थे क्योंकि इनका रुख दरवाजे की जानिब नहीं था। बीन की आवाज़ सुनकर पराठा को अपने वजूद में एक हल्की सी लड़खड़ाहट का एहसास हुआ और वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीन की आवाज़ पर झूमना इसकी फितरत थी। दोनों सपेरों ने बीन बजाते बजाते रुख बदला और फिर इनकी निगाहें भी पराठा और इसके साथ खड़े लड़के पर पड़ी। कभी कभी हैरानी के दौरे ऐसे पड़ते हैं कि इनका रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। सपेरों पर जो हैरत तारी हुई तो वो बीन पर से होठ उठाना ही भूल गए और बीन की आवाज़ तेज से तेज तर होती चली गई, लेकिन इससे पराठा के अंदाज में लग्जिश पैदा होती जा रही थी और वह अजीब से अंदाज में झूमने लगा। वो तो शुक्र था कि मिर्ज़ा मुक़द्दस ने एक तेज़ चीख मारी और दौड़कर बेटे से लिपट गया और इसके साथ ही शोर की आवाज़ें बुलंद हो गई। लोग शिद्दत हैरत से गुम रह गए और एक दूसरे से सूरत हाल मालूम करने लगे। सपेरों की बीन भी बंद हो गई, लेकिन वो दूसरों से हटकर गहरी निगाहों से पराठा का जायज़ा ले रहे थे। इनकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। लड़के को हाथों हाथ लिया गया। मिर्ज़ा मुक़द्दस इसे दीवानों की तरह चूम रहा था। औरतें भी शिद्दत जोश में बाहर निकल आई और सारी पर्दादारी ख़त्म हो गई। बात ही ऐसी थी। बहुत देर तक यह हंगामा आराई जारी रही। सपेरे एक सिमत बैठ गए। पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था और मिर्ज़ा मुक़द्दस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। पराठा खुद एक तरफ दीवार से टिककर खड़ा हो गया था और दोनों सपेरे इसे मुसलसल घूरे जा रहे थे। फिर बहुत देर के बाद मिर्ज़ा मुक़द्दस को होश आया और इसने पराठा के करीब पहुंचकर कहा, नौजवान, तुम जो कोई भी हो, इसके बारे में मैं बाद में मालूम करूंगा। पहले तो मैं खलूस दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने एक ख़ानदान को बचा लिया है। हम तुम्हारा ये एहसान फिर नहीं भूलेंगे। तुम्हें तुम्हारी काविशों का इनाम भी मिलेगा। आप इसका इनाम पुलिस स्टेशन भिजवा दीजिए मिर्ज़ा साहब, हम इसे ले जा रहे हैं। मगर क्यों? कहाँ? आप भूल गए, ये एक मुजरिम है और एक बहुत बड़े जुर्म में इसे गिरफ्तार किया गया है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारा मोहसिन थाने में हो। कैसे हो सकता है? अगर आप कोई गुंजाइश निकाल सकते हैं तो बराए करम हमारी वजह से निकाल दीजिए। ये तो हमारा मोहसिन है। आप सही फरमा रहे हैं मिर्ज़ा साहब। इसने वाकई जो कारनामा किया है वो बेमिसाल है, लेकिन इसके बावजूद ये कानून का मुजरिम है और हम इसे गिरफ्तार करने पर मजबूर है क्योंकि बाकायदा इसका चालान पेश किया जाएगा। मिर्ज़ा मुक़द्दस ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर बोला, और वो सपेरे? नहीं, अब इनकी ज़रूरत नहीं
क्योंकि आपका बच्चा अब जिंदा सलामत है। इन्हें वार्निंग देके छोड़ देता हूँ कि आइंदा अपने सांपों का ख्याल रखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, मैं जल्द आपके पास पहुँचूँगा और इस लड़के की ज़मानत का बंदोबस्त करूँगा। आप अपने कागज़ वगैरह तैयार रखिए। आप मुझे गाइड करेंगे कि मैं कैसे इसे महफूज रख सकता हूँ। जी बेहतर, वैसे आप इसका इनाम थाने ही भिजवा दीजिएगा। इंस्पेक्टर जानता था कि इस इनाम में इसका हिस्सा कैसे हो सकता है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उन्होंने परातो को गाड़ी में बिठाया और वहाँ से चले। परातो को एक बार फिर लॉकअप में बंद कर दिया गया था। दोनों सपेरों की बेशक जान छूट गई थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा था इसे देखकर वो दंग रह गए। मिर्ज़ा मुक़द्दस के हाथ से जो इनाम इन्हें मिला, इसे लेकर वो वहाँ से निकल आए। दोनों ही ने वो बात महसूस की जो परातो की शख्सियत के मुतालिक एक अजीब से तस्वुर को जन्म देती थी। बहरहाल दोनों एक ऐसी जगह जाकर बैठ गए जो सुनसान थी और इसके बाद नौजवान सपेरे ने कहा, दादू क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? पोते, अगर तू भी वही सोच रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने आज तक तुझ पर जो मेहनत की थी वो बिल्कुल ठीक है। मगर दादू अकल ख़राब हुई जा रही है। मेरी तो हो चुकी। दादू ज़रा गौर करो, क्या तुम्हारा ख्याल में वो इंसान नहीं था? पोते, जहाँ तक मेरा तजुर्बा काम करता है तो वो इच्छाधारी है। देख, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि इसने बड़े इत्मीनान से इसका जहर चूस लिया और इसे ठीक करके बाहर ले आया। दूसरी बात ये कि बीन सुनकर इसकी हालत ख़राब होती जा रही थी और अगर थोड़ी देर और बीन न रुकती तो वो बीन की आवाज़ पर खेलने लगता। हाँ दादू, यही मैंने महसूस किया। मगर क्या? मतलब तो ये हुआ दादू कि जो वो कहानी है वो सच्ची साबित हो रही है। ऐसी बात ही नहीं करते पोते। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था दादू कि आज तक तो ये कहानी सुनते ही आ रहे हैं कि 1000 साल की उम्र पाने के बाद इच्छाधारी अपनी मर्जी का रूप धार लेता है, पर देखा पहली बार है। देख, अगर इच्छाधारी हमारे हाथ लग जाए तो हम सपेरों की दुनिया में बादशाह बन सकते हैं। मामूली बात नहीं होती, सारे के सारे हमारे कदमों में बिछ जाएंगे। इच्छाधारी सांप का नज़र आना ही किसी सवेरे के जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, और अगर वो हासिल ही हो जाए, अरे बाप रे बाप, पुरखों से सारी कहानियाँ सुनते आ रहे थे, और अगर बात सच है तो बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात है। अब बताओ क्या करें? पोते, एक बात समझ में आ रही है। वो क्या? वो इसे थाने ले गए हैं। हाँ, और अगर वो इच्छाधारी है तो भला थाने वाले इसे क्या कैद रख सकेंगे? अपनी पसंद से जब तक इसका दिल चाहे वहाँ रहेगा और फिर वहाँ से निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहते हो दादू। अब हमारी पकड़ धकड़ तो कुछ होगी नहीं। थाने के आसपास कोई जगह देखकर वहीं डेरा जमा देते हैं। जैसे ही वो निकलेगा इस पर हाथ डालने की कोशिश करेंगे। ये बात तो हम जानते हैं कि सांप कैसे रास्ते इख्तियार करता है, और अगर वो ज़मीन के नीचे नीचे निकल गया तो अब ये तकदीर का खेल होगा। तो फिर क्या ख्याल है? कुछ नहीं। अब जबकि तेरे मन में भी वही बात है जो मेरे मन में है, तो फिर ऐसा ही करते हैं, थाने के आसपास चलकर डेरा जमाते हैं। दादा पोता वहाँ से चल पड़े। मिर्ज़ा मुक़द्दस ने अच्छी खासी रकम इनाम में दी थी, मुसीबत से भी बच गए थे। रास्ते में दादू ने कहा, पोते एक बात बताऊँ तुझे? हाँ दादू बताओ। बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि इच्छाधारी का नज़र आ जाना ही तकदीर की बात होती है, और इशारे मिल रहे हैं। तुम देखो, वो हमें थाने में नज़र आया, थाने से निकल गए। अगर लड़का मर जाता तो कौन जाने हमें कितनी बड़ी सज़ा होती। थाने से निकलकर इस कोठी में पहुँचे, वहाँ पर हमारी जान बची और इनाम भी मिला। ये सब बुजुर्गों की बातों की तस्दीक कर दी है। क्या ख्याल है? दादू बिल्कुल ठीक कहते हो। बस तो समझ ले कि तकदीर साथ दे रही है हमारा। थाने की इमारत के पास पहुंचकर दोनों सपेरे चोरी छुपे चारों तरफ का जायजा लेते रहे। तेज निगाह थी। बड़े गेट के सामने बैठने के बजाय पिछले दरवाजे की एक टूटी फूटी दीवार के साथ उन्होंने डेरा जमा लिया कि यहाँ से कोई इनकी जानी मुतवज्जा भी नहीं हो सकता, और वो अपने तौर पर इंतज़ार भी कर सकते थे। पोते ने कहा, दादू कहीं ऐसा ना हो वो बड़े गेट से निकल जाए। देखो पोते, इच्छाधारी है तो बड़े गेट से नहीं निकलेगा। अकल होगी इसके पास, वरना जब तक मर्जी आए बैठा रहे, कुछ नहीं मिलेगा। क्या समझा? दोनों इस बात पर मुतमईन हो गए और गेट से कुछ फासले पर जा बैठे। बहरहाल इंसान लो लगाता है, बाकी सारी बातें बात की होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ऑफिसर की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अगर मिर्ज़ा मुक़द्दस ज़्यादा कोशिश करता और अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करता तो वहीं अपने घर में ही पराता को पुलिस के जंगल से आज़ाद करा सकता था, क्योंकि बहरहाल पराता पर कोई जुर्म आयद नहीं हुआ था और इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती थी। असल में इंस्पेक्टर के जहन में ये बात थी कि जो इनाम पराता को मिलेगा इसमें इसका अपना हिस्सा भी बन जाएगा। बाकी तो सारी चीज़ें अपनी जगह थी। कानूनी मामलात को तो दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता था। चुनाचे वो इंतज़ार करता रहा। पराता को फिर से लॉकअप में बंद कर दिया गया
اور पराता अब बड़ी कोफत महसूस कर रहा था। भला यह भी कोई जगह है जहाँ वक्त गुजारा जाए। रह रहकर इससे जुम्बल की याद आ रही थी। बिल्कुल इसी की कहानी थी। वो बेचारा भी सदियां इंतजार करके नई दुनिया में आया था और यहाँ से अपने लिए गमों के पहाड़ ले गया था। पराता ने भी अम्बीना के साथ मिलकर इस नई दुनिया के ख्वाब देखे थे और अपनी जून बदलकर यह सोचा था कि नई दुनिया में एक मकाम बनाएगा, एक ऐसा मकाम जो ऐसे खुशियां बख्शे। लेकिन नई दुनिया की नहुसत ने सबसे पहले इससे इसकी अम्बीना छीन ली थी और वो अम्बीना के लिए सख्त दिल बर्दाश्ता था। और अब वो जिन मराइल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा था, इनमें इसके सामने सिर्फ एक ही तलब थी और वो ये तलब थी कि अम्बीना मिल जाए तो वो शमीला की जानिब चल पड़े। बहुत ही बेकार है ये दुनिया, कुछ भी नहीं है यहाँ। काफ़ी वक्त गुजर गया, इंस्पेक्टर भी इंतज़ार करता रहा। लेकिन मिर्ज़ा मुक़द्दस को बेटे की नई ज़िंदगी मिली थी। बहुत कम लोग अपने दिमाग पर काबू पा सकते हैं। इंसान में यही एक ख़राबी है, बड़े बड़े एहसानात को वो भूल जाता है। मिर्ज़ा मुक़द्दस बेटे की खुशी में इस तरह बदमस्त हुआ कि पराता को भूल गया। इसको याद नहीं रहा कि इसने अपने मोहसिन को थाने से आज़ाद कराने का वादा किया है और कोई इसका इंतज़ार कर रहा होगा। यह अलग बात है कि इंतज़ार करने वाला पराता नहीं बल्कि इंस्पेक्टर था, जिसे सिर्फ ये उम्मीद थी कि पराता का इनाम इसके हिस्से में भी आएगा। बल्कि जब मिर्ज़ा थाने आएगा तो वो खुद भी इसको मुबारकबाद देकर कहेगा कि साहब, इनाम के हकदार तो हम भी हैं। लेकिन पराता अब लॉकअप के अंदर बेजार हो गया था और सारी रात गुजरने के बाद दूसरे दिन सुबह वो सख्त बेजार था। इसने दरवाजे पर खड़े हुए संतरी से कहा, सुनो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरा दिल यहाँ से उकता गया है। संतरी ने मजाक उड़ा देने वाली निगाहों से इसे देखा और कहा, बेटे, मामू का घर समझ कर आए हो क्या कि जब दिल चाहे आओ और जब दिल चाहे चले जाओ? नहीं, अब मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा। जेल में लग जाएगा, वहाँ ज़्यादा कैदी होते हैं और फिर मार भी अच्छी फांसी पड़ती है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, बस मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। कहा ना, बाप का घर है क्या? मेरे बाप का घर नहीं है, मगर मैं जाना चाहता हूँ। अबे चुप बैठ, जाना चाहता है, जाना चाहता है। 2 डंडे पड़ेंगे तो टांगे बेकार हो जाएंगी साहबजादे। पराता बेबसी से इसे देखने लगा। संतरी इसे घूरता रहा। इतनी देर में एक और संतरी वहाँ पहुँच गया। संतरी ने दूसरे से कहा, सुनो, भाई की बात सुनो। क्यों, क्या हो गया? ये यहाँ से जाना चाहता है तो ताला खोल दो। दूसरे संतरी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और दोनों हंसने लगे। पराता को आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आता जा रहा था। इसने एक बार फिर इन्हें मुखातिब किया, देखो, मुझे जाने दो वरना नुकसान उठाओगे। ये लो, ये तो भाई खलनायक बन गया, जाने दो वरना नुकसान उठाओगे, पहले संतरी ने कहा। और पराता ने अचानक अपने दोनों हाथ ऊपर बुलंद किए। संतरी इसे देखता रहा। दूसरा संतरी भी खामोशी से देखता रहा। लेकिन इस वक्त इन दोनों की हैरत उरूज पर पहुंच गई जब उन्होंने अचानक पराता के जिस्म को पतला होते हुए देखा। इसके जिस्म से हल्का हल्का धुआं खारिज हो रहा था। उठे हुए दोनों हाथ अपना रंग बदलते जा रहे थे और फिर एक संतरी उछलकर दूसरे के ऊपर चढ़ गया। इसने खौफजदा अंदाज में कहा, देख रहे हो सांप? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? चौड़े फन वाला नाग इन्हें घूर रहा था। फिर इसने अपना फन नीचे डाला और सलाखों वाले दरवाजे की जानिब फंडने लगा। दोनों संतरी सर पर पाँव रखकर भागे थे। पराता सलाखों से बाहर निकल आया। अब इतनी अकल तो आ रही थी कि किसी और सीमत का रुख करे। इधर संतरी शोर मचा रहे थे, सांप सांप सांप। इंचार्ज बाहर निकल आया। इसने घसीले अंदाज में दोनों संतरियों को नचाते हुए देखा और गुस्से से चीखा, क्या मुसीबत नाजिल हुई है तुम पर? दोनों ने ज़मीन पर पाँव मारकर इंस्पेक्टर को सलूट करना चाहा, लेकिन बदहासी के आलम में इनके पाँव एक दूसरे के पाँव पर लगे और दोनों ही चीख पड़े, सांप। इंस्पेक्टर घसीले अंदाज में इन्हें घूरने लगा। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं साहब। तो फिर क्या हरकतें कर रहे हो? साहब जी, लाकअप में सांप। लाकअप में सांप? आओ मेरे साथ, इंस्पेक्टर ने कहा और अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर निकाल कर वो आगे बढ़ा और लाकअप के सामने पहुंच गया। कहाँ है साहब? सर जी निकल गया। तो फिर तुम्हें क्यों मौत आ रही है? अरे ये कैदी कहाँ गया? वही तो सांप था साहब जी। क्या मतलब? खुदा कसम कह रहा था कि अब इसका दिल उकता गया है यहाँ से, वो जाना चाहता है। हम इसका मजाक उड़ाने लगे। साहब जी, अपनी आंखों से देखा है हमने, कसम ले लो। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सांप बन गया और फिर निकल गया यहाँ से। इंस्पेक्टर दोनों संतरियों को घूरता रहा तो इसने कहा, करीब आओ। संतरी करीब पहुंचे तो इंस्पेक्टर ने कहा, मुंह खोलो। तो दोनों संतरियों ने अपने मुंह खोल लिए। इंस्पेक्टर ने इनके मुंह सूंघ कर देखे और फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, लाना तो तुम पर, कभी दांत साफ नहीं करते। सांप का हमारे दांतों से क्या ताल्लुक साहब जी? मैं सूंघ रहा था कि तुमने शराब तो नहीं पिए। लीजिए साहब, हम जैसे गरीब लोग शराब पी सकते हैं क्या? अब बक बक किए जा रहे हो। मैं पूछता हूँ वो कहाँ गया? साहब जी, इसकी तो सारी बात है।
तलाश करोगे तो जाओ इसे तलाश करो। और वो पराता को तलाश करने के लिए भाग दौड़ करने लगे। लेकिन पराता अब इन्हें कहाँ मिलने वाला था। वो तो अब नए ध्यानों का सफ़र कर रहा था। वो अपनी अकल से भी काम ले रहा था। वो जानता था कि दोनों सिपाही पूरी कहानी सुना देंगे और इसके बाद जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन हो गया। चुनाचे वो इधर से उधर जाने के बजाय थाने की इमारत के उकबी हिस्से की जानिब चल पड़ा और फिर इसे टूटी हुई दीवार से बाहर निकलने का रास्ता नजर आ गया। वो खामोशी से बाहर निकल आया। इस वक्त सांप की हैसियत से आगे बढ़ना ज्यादा मुनासिब था। जगह भी इस काम के लिए बहुत तेज थी और इसे एक दरख्त की जड़ नजर आई। वो सीधा इसकी जानिब चल पड़ा और कुछ लम्हों के बाद दरख्त की जड़ में पहुंचकर रुक गया। करीबन जुआर में गाड़ियां चल रही थी। लोग इधर से उधर आ जा रहे थे। चुनाचे इसने दरख्त के ऊपर थोड़ा सा वक्त गुजारने ला मुनासिब समझा। इसका लचकदार जिस्म दरख्त के तने पर ऊपर चढ़ने लगा। खासा घना दरख्त था और इसके पत्ते भी दूर दूर तक फैले हुए थे। पराता इस पर चलता चढ़ा गया। सबसे ऊपर एक चौड़ी सी शाख पर इसने अपना मस्कन बनाया और इसे लिपटकर दम लेने लगा। निगाहें अभी तक थाने की इमारत पर उठी हुई थी और वह देख रहा था कि उधर से क्या कार्रवाई होती है। लेकिन उधर से तो कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। या तो सिपाही थाने की इमारत के अंदर ही अंदर चक्कर लगाते फिर रहे थे या फिर वो जानबूझकर बाहर नहीं आए थे। अलबत्ता ये बात पराते के इल्म में भी नहीं थी कि दो अफराद इसकी गहरी निगरानी कर रहे हैं। ये वही दादा पोता थे जिन्होंने बड़ी आस लगाकर यह रात थाने के सामने ही गुजारी थी और इंतजार करते रहे थे। बल्कि इस सिलसिले में दादा पोता आपस में बहस भी करते रहे थे। पोते ने कहा था, दादाजी अब बस भी करो, बैठे बैठे कमर दुख गई है। पोते तू जानता है कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना होती है। वो तो तुम ठीक कह रहे हो और फिर कुछ पाने की उम्मीद भी तो हो। तेरा क्या ख्याल है, क्या वो नाग नहीं था? मानता हूँ दादाजी 100% था। मगर एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो थाने से निकल भागेगा? देखो बेटा, थाने में रहकर क्या वो तेरी दादी का इंतजार करेगा? अबे बेवकूफ़, इच्छाधारी है वो, इच्छाधारी कभी किसी के कब्जे में नहीं रहते। इनका संसार अलग होता है, इनकी दुनिया अलग होती है। वो काबू में आने वाले नहीं होते, समझा पागल? वो किसी के काबू में नहीं आते इसलिए कि वो इच्छाधारी होते हैं। पोता खामोशी से गर्दन हिलाने लगा। पराता देर तक नाग के रूप में सफ़र करता रहा। फिर अचानक इसे एहसास हुआ कि दो अफराद इसका ताक़ुब कर रहे हैं। ये दोनों वही सपेरे थे। पराता ने इन्हें पहचान लिया, लेकिन अब वो कोई नया खेल नहीं खेलना चाहता था। इसे इंसानों की इस दुनिया की हकीकत मालूम हो चुकी थी। अब वो इस दुनिया को छोड़ देना चाहता था। दिल में अगर कोई गम था तो अम्बीना का। इन लम्हात को कोसता रहता था जिनमें यह फैसला किया था कि इंसानी रूप धार कर इंसानों की दुनिया देख ली जाए। इस दुनिया के लोग सांप को एक मोदी जानवर कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि खुद सांप से ज़्यादा जहरीले, इससे ज़्यादा खतरनाक और एक दूसरे से नफरत करने वाले होते हैं ये लोग। कैसे कैसे फनाते हैं इन्हें। शुक्र है कि सांपों को सिर्फ कुदरती तौर पर जहर मिला है। हालांकि वो कुदरती तौर पर जहरीले हैं, लेकिन दुनिया के लोग फितरी तौर पर जहरीले हो जाते हैं। क्या करना चाहिए मुझे? कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी तदबीर हो जिससे इस जहरीली दुनिया से निजात मिल जाए। अम्बीना, गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है अम्बीना। काश मैं तुझे तलाश कर लेता और इसके बाद हम दोनों वापस अपनी वादी में पहुंच जाते जहां सांपों की मुमलिकत थी। जिंदगी कितनी ही होती, लेकिन कम से कम अपनी दुनिया में मस्त रहते। बहुत गम के मालूम में यह सारी बातें सोच रहा था। दोनों सपेरे मुसलसल इसका ताक़ुब कर रहे थे। एक बार इसके दिल में झुंझलाहट पैदा हुई और इसने सोचा कि इन्हें इस ताक़ुब से निजात दिला दे। कोई ऐसी बात नहीं थी जो वो ना कर सकता, इसलिए छुपकर इनका इंतज़ार करता रहा और जब वो करीब आए तो इन्हें डस लेता। लेकिन फिर इसमें और इंसानों में ही क्या फ़र्क रह जाता। वो इंसानों की दुनिया में रहकर इंसानों जैसा काम करता। चुनाचे इसने इरादा बदल दिया। अलबत्ता सपेरों से निजात पाने के लिए एक अमल किया। वो ऐसे मकान के सामने खड़ा था जिसका टूटा फूटा अहाता इसकी निगाहों के सामने था। सपेरे एक मोड़ घूम रहे थे। चुनाचे इसने फ़ौरन ही एक जगह रुककर अपना रूप बदला और इंसान के रूप में आ गया। लेकिन दोनों सपेरे मुसलसल इसकी जानिब चले आ रहे थे, इंसानों के दरमियान रहकर। अब इसने इंसानों जैसी चालाकियाँ सीख ली थी। चुनाचे वो इस तरह सीधा चलने लगा जैसे कोई राहगीर अपने किसी काम से जा रहा हो। खासा फासला तय कर लिया था इसने, लेकिन सपेरे मुसलसल इसके पीछे चले आ रहे थे। या तो इन्हें शोभा हो गया था या फिर ये इत्तफाक था और सपेरे सांप की तलाश में चले आ रहे थे। लेकिन बहरहाल पराता इंसान नहीं था। एक अजीब सा खौफ इसके दिल में पैदा हुआ। चंद कदम आगे बढ़ा था कि एक बोसीदा मकान का दरवाज़ा इसे खुला हुआ नजर आया। वो बेअख्तियार इस दरवाजे में दाखिल हो गया। दोनों सपेरे दरवाजे के सामने आगे निकल गए थे। पराता खामोशी से इन्हें देखता रहा। फिर जब वो काफ़ी दूर ही निकल गए तो पराता ने दरवाजे से बाहर कदम रखने का फैसला किया ही था
कि अकब से इसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, बाहर मत जाना। पराता चौंक कर रुक गया। इसने पलटकर देखा तो अच्छी जसामत का एक बूढ़ा आदमी जिस्म पर बोसीदा लिबास था, अजीब से अंदाज में खड़ा इसे देख रहा था। फिर इसने एक ठंडी सांस भरकर कहा, तवील अरसा गुजर गया, इस घर में कोई मेहमान नहीं आया। अब जब तुम इस घर के दरवाजे से अंदर कदम रख ही दिए हैं तो आओ अंदर आ जाओ। मैं अपनी मुश्किल का हल नहीं तलाश कर सका, लेकिन तुम्हारी मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम्हें इस घर में तकलीफ नहीं होगी। कुछ अजीब सा लहजा था इसका, अल्फाज भी अजीब थे। पराता ने एक लम्हे के लिए सोचा और इसके बाद वो अंदर दाखिल हो गया। बड़े से एक कमरे में इंतहाई बोसीदा फर्नीचर पड़ा हुआ था। बूढ़े ने चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं बीमार हूँ, बहुत से मामलात में उलझा हुआ हूँ। बैठो, तुम्हारी खातिर तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक चीज़ दिखा सकता हूँ, एक ऐसी चीज़ जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मगर नहीं, जब वो मैं तुम्हारे सामने पेश करूँगा तो तुम्हें एक अजीब सा एहसास होगा। हकीकत यह है कि मैं इस कहानी की गहराइयाँ तलाश नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम किसी न किसी तरह मेरे सामने आओगे, और एक ये अनोखा ख्वाब था। तो तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे होगे। बिलाशुबा मुझे खुद भी एहसास है कि मैं दीवानों की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, ये दीवानगी ही मेरी तकदीर है, और तकदीर से भला आज तक कौन लड़ सका है, क्या समझे। पराता ने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हें वो अनोखी शे दिखाऊं, पहले मैं तुम्हें इसके बारे में तमाम तफसीलात बता दूं। बोलो, मेरी कहानी सुनना पसंद करोगे? अगर तुम समझते हो कि मुझे अपनी कहानी सुनाकर तुम्हारे सीने का बोझ हल्का हो सकता है तो मैं इससे कभी इनकार नहीं करूँगा। हाँ, तुम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। पराता का जहन भग से उड़ गया था। वो इंसान के रूप में था, फिर बूढ़े कैसे कह सकता था कि वो इंसान नहीं है। चंद लम्हे खामोशी से सूरत हाल का जायजा लेता रहा, फिर इसने कहा, सुनाओ अपने बारे में, क्या सुनाना चाहते हो। बूढ़ा किसी ख्याल में गुम हो गया। फिर इसने गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम यकीन करोगे कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। यह बात तुम पहले भी कह चुके हो। हाँ, लेकिन क्या तुमने यकीन किया? नहीं। ओह, इस ज़ाफ़ गोई के लिए शुक्रगुजार हूँ। पहले मैं तुम्हें इस मुख्तसर अल्फाज में यह बता दूँ कि कब एक मुश्किल में गिरफ्तार होकर सितारों का इल्म सीखा। ठीक, सितारों से मैंने अपनी मुश्किल का हल पूछा। उन्होंने बताया? हाँ। क्या बताया? यही कि मेरी मुसीबत दूर करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो फिर वो कोई इंसान के रूप में होगा। तुम मुझे बताओ, मैंने ठीक कहा है? मुमकिन है। नहीं दोस्त, तुम 100% वही हो जिसका मुझे इंतज़ार था। अब मेरे बारे में सुनो। मेरे आबाओ अजदाद बड़ी अच्छी हैसियत के मालिक थे। बेशुमार ज़मीन थी हमारी, और मैंने बचपन से जवानी तक एक मखसूस हद तक का वक्त सैर व शिकार, तफरी में जोही में गुजारा। इसके अलावा कोई काम नहीं था। 4 भाइयों में से सबसे छोटा था, इसलिए सबकी आंखों का तारा था। सभी मुझे चाहते थे, लेकिन मेरी फितरत शुरू ही से मुझे नहुसत की तरफ धकेल रही थी। महम जोई की आदत में इजाफा होता जा रहा था। कोई परेशानी और दिक्कत थी नहीं। इब्तिदा में तो छोटे छोटे शहरों शिकारी करता रहा, लेकिन इसके बाद लंबे सफ़र इख्तियार करना शुरू कर दिए। कुछ हम ख्याल साथी मिल गए थे जो बाद में मेरे साथ रहा करते थे, और हम लोग मुल्क से बाहर ऐसे इलाकों में भी चले जाते थे जो महम जोई के लिए मुनासिब हों। इन दिनों हम तिब्बत में थे। तिब्बत की बुलंद तरीन चोटियाँ हमें अपनी तरफ खींच लाई थी। हमने एक नाकाबिले तकसीर पहाड़ का सफ़र करने का इरादा कर लिया और इसके लिए इंतज़ाम करने लगे। तिब्बत के बाशिंदे हमारे रहबर और मुआविन थे। चंद अफराद को हमने साथ ले लिया और इस बुलंदो बाला पहाड़ को सर करने के लिए चल पड़े। तमाम ज़रूरी इंतज़ाम कर लिए गए थे। जो तिब्बती बाशिंदे हमारे साथ सफ़र कर रहे थे, उन्होंने अपना एक सरबराह चुन लिया था जिसका नाम शाकाई था। शाकाई एक नौजवान, तंदुरुस्त तवाना आदमी था और बहुत ही नेक और शरीफ तबीयत का मालिक। खामोश तबीयत रखता था और कम गुफ्तगू करता था। वैसे इस कारकर्दगी की बिना पर मैंने इसे पसंद किया था। हम बुलंदो बाला पहाड़ों के ख़तरनाक रास्ते पर तय कर रहे थे और आगे बढ़ते रहे, और कई रोज़ के सफ़र के बाद हम लोग दरमियान में पहुंच गए। यहाँ से एक आसान रास्ता पहाड़ की बुलंदियों पर जाने के लिए पगडंडियों के शक्ल में नज़र आया, तो मैं अपने साथियों के साथ रुक गया। वाह, यूँ लगता है कि जैसे ये रास्ता बाकायदगी के साथ बनाया गया है, मैंने कहा, और मेरे साथी भी इस पगडंडी को दिलचस्पी की निगाह से देखने लगे। अगर इस पगडंडी के ज़रिए सफ़र किया जाता तो पहाड़ के एक मखसूस हिस्से तक पहुँचने में काफ़ी आसानियाँ फराहम हो सकती थी, जबकि इसके दूसरे जानिब से, यानी इस रास्ते से जिससे हम अब सफ़र करते रहे थे, खासी मुश्किल पेश आ सकती थी। चुनाचे मैंने वही रुख इख्तियार किया, लेकिन इस वक्त शकाई मेरे पास पहुँच गया। कुछ कहना चाहता हूँ जनाब, इसने संजीदगी से कहा, और मैं चौंक कर इसे देखने लगा। क्या बात है शकाई?
यह पगडंडी सफ़र के लिए मुनासिब नहीं है, शिकाई ने कहा। क्यों? बस जनाब, मैं पहले भी इस तरफ आ चुका हूँ। यह रास्ता मनहूस रास्ते कहलाते हैं। आपको इस तरफ से सफ़र नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर पेश आएंगी, मगर सफ़र का वही रास्ता मुनासिब है। मनहूस रास्ते? तुम इन रास्तों से सफ़र कर चुके हो शिकाई? जी हाँ जनाब, 2 बार, लेकिन दरमियान में ही लौट आना पड़ा। क्या नौसरदैन में है? मैं नहीं जानता जनाब, लेकिन मैं जिन सयाहों के साथ यहाँ पर आया हूँ, इनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने इन रवायत का मजाक उड़ाया और फिर इसके बाद इन्हें इस रास्तों से वापस लौटना पड़ा। जाने की उलामाओं में और तिब्बत के बाशिंदों में यह बात मशहूर है ये कि पगडंडियाँ बहुत मनहूस हैं। अगर यह बात है शिकाई तो ठीक है। हम सिर्फ तफरीही मकासद के तहत पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं और हमें कोई कीमती शय हासिल करना मकसूद नहीं है। चुनाचे ये रिवायात तो हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, मैं आपको रोकने की जुर्रात तो नहीं कर सकता, लेकिन चंद मुश्किलात ज़रूर पेश आएंगी। मुमकिन है हमारे साथी मजदूर इन रास्तों पर सफ़र करना पसंद ना करें। ओह हाँ, ये मुश्किल तो है, लेकिन क्या तुम इन्हें समझा नहीं सकते? मैं, शिकाई हचकचाते हुए अंदाज में बोला। क्या तुम इन रास्तों से डरते हो? जी हाँ जनाब, अंधे के रास्ते इंसान को खौफजदा कर ही देते हैं। सामने कोई मुसीबत आए तो इससे निपटने का बंदोबस्त भी किया जा सकता है, लेकिन अगर फिजा में खामोश बलाएं गर्दिश कर रही हो तो आदमी क्या कर सकता है? ठीक है, इन खामोश बलाओं को भी देखें, आखिर ये क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और शिकाई परेशानी से गर्दन हिलाने लगा। ठीक है जनाब, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन मजदूरों में से अगर कुछ वापस जाना चाहें तो बराए करम इन्हें ज़रूर इजाज़त दे दें। हम इनकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक है शिकाई, अगर ऐसी बात है तो तुम ये अख्तियार रखते हो कि जिसको चाहो वापस कर दो, मैंने कहा और शिकाई गर्दन हिलाकर चला गया। और इसका कहना सच ही निकला। तकरीबन 8 मजदूर वापस चले गए। मैंने इन्हें मुआवजे की रकम अदा कर दी जिसका मैंने इनसे वादा किया था। बाकी चंद मजदूर हमारे साथ रह गए जो बाहिम्मत और नौजवान थे। मेरे साथी भी इस सफ़र के सिलसिले में खासे मुतजस्सिस नज़र आ रहे थे और इनमें से कोई खौफजदा नहीं था। हमने इन पगडंडियों पर सफ़र शुरू कर दिया और बड़े ताज्जुब की बात थी कि थोड़े सफ़र के बाद शिकाई के चेहरे से भी खौफ दूर होने लगा। इसने चारों तरफ देखकर कहा, ना जाने क्यों इन पगडंडियों को मनहूस करार दे दिया गया है। बज़ाहिर तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिसे खतरे का बायस कहा जाए। हम आगे बढ़ते रहे और पहाड़ियों की बुलंदियाँ तय होती रहीं। हमें एक ऐसा पहाड़ नजर आया जिसमें गार का दहाना था। यह गार इंतहाई अजीबोगरीब महसूस हो रहा था क्योंकि दहाने की शक्ल इंसानी शक्ल से मुशाबा थी। अजीबोगरीब सूरत हाल थी और यही चीज़ ताज्जुब का बायस बन गई, वरना गार तो रास्ते में बहुत से बड़े थे। गार से फूटने वाली रोशनी ने मुझे मुतहैयर कर दिया। मैं सोचने लगा कि यहाँ इस खतरनाक जगह कौन रहता है। इंसान का गुजर तो यहाँ मुश्किल से ही होता है, लेकिन तिब्बत का इलाका था। तिब्बत के राहिब अपने मजहब की पैरवी करते हुए तारीख दुनिया हो जाते हैं। मुमकिन है कि यहाँ भी कोई ऐसा ही राहिब जिंदगी के दिन गुजार रहा हो। बात महमजोई की थी और दिलचस्प चीज़ों को देखने का तजुस्सुस मेरे जहन में ज़रूरत से ज़्यादा था। चुनाचे फैसला कर लिया कि गार के अंदर जाकर देखूंगा। फिर मैं जब आगे बढ़ा तो दफातन हमारे राहिब शिकाई ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं मेरे मोहतरम दोस्त, इस गार में ना जाओ। क्यों शिकाई, क्या बात है? मेरे अजीम दोस्त, मेरा दिल गवाही देता है कि ये गार अच्छे नहीं और इनमें दाखिल होने से हम किसी भी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। इस एहसास की कोई ख़ास वजह है तुम्हारे जहन में? मैंने सवाल किया। नहीं, लेकिन लोगों का ख्याल है कि पहाड़ों पर सफ़र करने वाले अफात की निशानदेही के सिलसिले में ज़रूरत से ज़्यादा हसास होते हैं। हमें बर्फ़ानी तूफ़ान से कबल अज़ वक्त आगाह कर देते हैं। चलते चलते हमें ये एहसास हो जाता है कि आगे यकीनन कोई ऐसा गड्ढा मौजूद है जो हमसे हमारी ज़िंदगी छीन सकता है और हम सब वो रास्ता तर्क कर देते हैं। मेरे मोहतरम दोस्त, इस वक्त भी मेरा ज़हन यही बता रहा है कि ज़रूर किसी न किसी जगह हम हादसे का शिकार हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है शिकाई कि मेरा ताल्लुक़ ऐसे मज़हब से है, ना ही मैं तुम्हारी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ। बेहतर यह है कि सब बाहर रुको, मैं तन्हा इस गार में जाऊँगा, मैंने कहा और शिकाई परेशानी से मुझे देखने लगा। शिकाई की बातों से मेरे दोस्त साथी मुतासिर हो गए थे। चुनाचे उन्होंने भी मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी बात टाल दी और इनसे कहा, दोस्तों मैं तुम्हें अपने साथ जाने पर मजबूर नहीं करूँगा। मेरा पहाड़ों पर आने का मकसद ही यही था कि मैं मुकम्मल तौर से यहाँ सैर व सयाहत करूँ। मुझे यकीन है कि गार को अंदर से देखने के बाद बखैरियत वापस आ जाऊँगा। चुनाचे तुम किसी किस्म का तर्द ना करो। इन लोगों के समझाने के बावजूद मैंने इनमें से किसी की बात नहीं मानी और मैं इस गार के दहाने से अंदर दाखिल हो गया। वो सब कहीं कहीं कदम पीछे हट गए थे। जैसे इनका ख्याल हो कि जैसे ही गार में दाखिल होगा गार के दहाने में शोले भड़क उठेंगे, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। रोशन गार में अंदर दाखिल होकर मैंने चारों तरफ देखा। गार ज़्यादा कुशादा नहीं था, लेकिन इस छोटे से गार में इन शोलों के अलावा और कोई चीज़ मौजूद नहीं थी।
चुनाचे यहाँ दाखिल होने से इस गार के बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं हो सकी और मैंने इस दूसरे सुराख की जानिब रुख किया और जब इस सुराख से अंदर देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि गार का ये दूसरा हिस्सा इंतहाई वसी और अरीज है। इसकी कुदरती छत थी जो बेहद बुलंद थी और इस गार की दीवारों में भी मशाले नस्ब थी। गार के दरमियान संगे मूसा से बना हुआ एक मुहिब मुजस्मा था और मुजस्मे के सीने के एन दरमियान कोई चीज़ बिजली के बल्ब की तरह चमक रही थी। मुजस्मे का कदो कामत और इसकी तराश बेहद हसीन थी सिवाय इसके चेहरे के। ये चेहरा यकीनन खौफनाक था और मशालों की रोशनी में ऐसा ही महसूस होता था जैसे कोई अनफरियत मुंह खोले खड़ा हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि गार में कोई इंसानी वजूद मौजूद नहीं था। हालांकि यह मशाले किसी न किसी ने तो रोशन की होंगी। वो कहाँ है? वो इस गार का मकीन है। मैं गार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दीवारों के किनारे किनारे चक्कर लगा आया, लेकिन इस मुजस्मे के सिवा और कोई चीज़ इन दोनों गारों में मौजूद नहीं थी। फिर मैंने हिम्मत करके मुजस्मे को करीब से देखने का फैसला किया और इसके सामने पहुंच गया। बुलंदो बाला मुजस्मे के कदमों में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। बिलाशुबा इसे संगे तराशी का एक नायाब शहकार कहा जा सकता था। मैंने गले में लटका हुआ कैमरा उतारा और इसकी कहीं तस्वीरें ले डाली। हर रुख से तस्वीरें लेने के बाद मेरा तजस्सुस मुझे इसके नज़दीक ले गया। अब मैं इसके सीने में चमकती हुई रोशनी देखने का ख्वाहिशमंद था और जब आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर मैंने इसे करीब से देखा तो मेरी आंखें चकाचौंध होकर रह गई। एक हसीन गुड़िया इस मुजस्मे के सीने में मौजूद थी। मेरी जहांदीदा निगाहें इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी कि ये 3 तराशे हुए हीरे हैं जिन्हें जोड़कर गुड़िया की शक्ल दी गई थी। इतने बड़े बड़े हीरे हासिल करने का तसव्वुर बेहद सरूर अंगेज था। मैंने अपने तौर पर इनकी कीमत का तयन भी कर लिया था। बिलाशुबा में एक साहिब हैसियत आदमी था, ज़मींदार का बेटा था। शायद दौलत की हवस कभी पूरी नहीं होती। हालांकि मेरी महम जोई का शौक सिर्फ तफरीह की हद तक था। मैंने दूसरे सयाहों की मानंद खजाने हासिल करने के ख्वाब नहीं देखे थे, लेकिन अगर खजाने खुद चलकर किसी इंसान तक पहुंच जाए तो शायद चंद ही ऐसे दरवेश सिफत इंसान होंगे जो इन्हें नज़रअंदाज कर दें। चंद लम्हात के लिए मैं इस गार के माहौल को भूल गया और मेरी निगाहों में सिर्फ 3 हीरे थे जिन्हें खूबसूरती से तराशा गया था। गुड़िया स्याह मुजस्मे के सीने में इस तरह रखी हुई थी जैसे किसी ताक में कोई चीज़ रख दी जाए। मेरा लहसता हुआ इसकी जानिब बढ़ा। यह मेरी पहुंच से दूर नहीं थी और मैंने गुड़िया पत्थर के सीने से निकाल ली। एक लम्हे के लिए मुझे यूँ लगा जैसे पूरे गार में गड़गड़ाहट होने लगी हो। अजीब सी आवाज़ें मेरे कानों से टकराई और मेरे कदम लड़ने लगे। मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। मैंने खुद को संभाला और हैरत से चारों तरफ देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरा वहम है। मैंने इस कीमती गुड़िया को अपने लिबास के अंदरूनी हिस्से में पोशीदा कर लिया। मेरा चेहरा फितरत मुसर्रत से सुर्ख हो रहा था। इतनी कीमती और नायाब शे मैं यहाँ से ले जा रहा था, इस बात का एहसास मेरे बदन की लर्जिश बन गया था। गार का माहौल अब भी इस तरह पुरसकून था, लेकिन जो मैं वापसी के लिए कदम बढ़ाता गया मैंने महसूस किया मेरे कम में मशालें बुझ रही हैं। और जब मैंने गार के दहाने से दूसरी जानिब कदम रखा तो मेरे हुक्म में रोशन गार तारीख हो गया था। अलबत्ता दूसरा हिस्सा बदस्तूर रोशन था। इंतहाई हैरत की बात यह थी कि जो मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे यह मशालें खुद ब खुद बुझती जा रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे जहन पर खौफ का हल्का सा तासुर उभरा, लेकिन इस छोटे दहाने का फासला तय करके मैं गार के बैरूनी दहाने से बाहर निकल आया जहाँ मेरे साथी मेरे मुंतजिर थे। मुझे मुसर्रत की निगाहों से देखा गया। खास तौर से शिकाई मेरे नज़दीक पहुँच गया और इसने लड़ती हुई आवाज़ में कहा, आह मेरे आका, मेरे दोस्त, तुम खैरियत से हो ना? हाँ शिकाई, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे मज़हब से है जो तोहमात पर यकीन नहीं रखता और इसके अलावा गार में कुछ भी नहीं सिवाय एक संगी मुजस्मे के जो 2 कामत है। अलबत्ता चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हैरान कुन है। वो क्या? गार में मशालें रोशन थी, लेकिन इन मशालों को रोशन करने वाला कोई नज़र न आया और जब मैं वहाँ से वापस पलटा तो ये मशालें खुद ब खुद बुझ गई। तुम देख लो, गार का दहाना तारीख हो चुका है। हाँ, हमने देखा है और डर गए थे। हम तो तुम्हारी खैरियत की दुआएं मांगने लगे थे कि न जाने ये क्या हो गया, मेरे साथियों ने कहा। और फिर शगाई ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। बस मेरे आका, अब यहाँ से आगे बढ़े, ना जाने क्यों मुझे इस मकाम से वहशत हो रही है। मैंने शगाई की बात का जवाब नहीं दिया। वैसे भी अब यहाँ रुकना बेमकसद था। चुनाचे हमने आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बिलाशुबा मुझे कीमती चीज़ हासिल हो चुकी थी। यह मेरे लिए इतनी ज़बरदस्त अहमियत नहीं रखती थी कि मैं फौरी वापसी का फैसला कर लेता। हम पहाड़ की चोटी तक पहुँचे और वहाँ हमने अपने निशानात छोड़े। मेरे साथी और मैं बड़ा खुश था और शकाई भी बड़ी हद तक मुतमईन नजर आने लगा था। हालांकि इसकी इतला के मुताबिक सयाह या महमजू इस रास्ते से ऊपर नहीं पहुँच सके थे और इन्हीं दरमियान से ही वापस जाना पड़ा था, लेकिन हमने कामयाबी से अपनी मंजिल तय की थी। चुनाचे चंद रोज़ हम यहाँ रुके और बेशुमार तस्वीर बनाई गई थी और इसके बाद वापसी का सफ़र भी तय हो गया।
میں نے واپسی کے لیے بھی اسی راستے کی تجویز پیش کی، لیکن نہ جانے کیوں میرے ساتھی متفق نہ ہوئے اور ہم نے کسی حد تک دشوار گزار راستہ طے کیا۔ گو مجھے اس راستے سے اختلاف تھا، لیکن میں نے سوچا کہ کوئی حرج نہیں، اگر یہ لوگ اسی راستے سے سفر کرنے پر بضد ہیں تو میں بھی اس کے ساتھ ہی چلوں گا۔ اور اب ہم پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ ہماری واپسی کے سفر کا تیسرا دن تھا۔ شام سے آسمان ابر آلود ہو گیا تھا اور شکائی نے آسمان کو دیکھتے ہوئے پیشن گوئی کی تھی کہ شاید برف باری ہو جائے۔ اس نے کہا اس علاقے میں برف باری اس موسم میں نہیں ہوتی، لیکن بے موسم اگر برف باری شروع ہو جائے تو پھر وہ بڑی تباہ کن ہوتی ہے اور کافی شدید بھی۔ شکائی کی اس بات کو ہم نے انداز نہیں کیا اور برف باری سے بچنے کے انتظامات کرنے لگے، لیکن برف باری سے پہلے تیز ہواؤں کے جھگڑوں نے ہمارا استقبال کیا تو ہم میں سے ہر شخص پریشان ہو گیا۔ جو بلندی ہم اتر رہے تھے ان میں سے بعض کے راستے اتنے خطرناک تھے کہ ہواؤں کے تیز جھگڑوں سے ہمارے قدم ذرا بھی لڑکھڑا جائیں تو زندگی کا تصور بھی محال ہو جائے۔ اس صورتحال سے ہم کافی خوفزدہ ہو گئے اور جہاں تھے وہیں دبک کر رہ گئے۔ بڑی بڑی چٹانیں موجود تھی اور کہیں پر اگر مضبوطی سے جمع رہا جائے تو یہ سخت موسم ٹل سکتا ہے۔ چنانچہ چند لمحات میں فیصلہ کر لیا گیا اور ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا، لیکن وہاں خیمے لگانے کا موقع کہاں تھا۔ ہوائیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور تاریکی چھاتی گئی، پھر ہواؤں کا زور ٹوٹا اور برف باری شروع ہو گئی۔ برف باری تھی کہ برف کا قہر، اتنی شدید برف باری کا تصور بھی محال تھا۔ برف کے انبار جگہ جگہ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ بہر صورت چونکہ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھی اس لیے کسی حد تک سکون تھا اور ہنگامی طور پر یہی طے کیا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چٹان کو تلاش کیا جائے جہاں خیمے نصب ہو سکے، ورنہ اس برف میں تو زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ پوری ہمت کرنے کے بعد ہم لوگ نیچے اترنے لگے۔ شدید برف باری اور تاریکی کی بنا پر یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کون کس جانب جا رہا ہے، تاہم کسی مناسب جگہ کی تلاش بھی ضروری تھی، ورنہ موت تو دونوں ہی شکل میں نزدیک سے نزدیک تر آ رہی تھی۔ میں جس جگہ سے نیچے اتر رہا تھا وہ گھومتی ہوئی ایک چٹان کے گرد سے نیچے جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میرے ساتھی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہوں گے، یا اگر دوسری جانب سے بھی کوئی اگر نیچے اتر رہا ہے تو بہر صورت ہمارا فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں خاموشی سے اترتا رہا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جو کافی وسیع تھی اور جہاں 4-6 خیمے لگائے جا سکتے تھے۔ اتنی ہی جگہ درکار تھی کیونکہ صرف وقت گزارنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے حلق پھاڑ پھاڑ کر انہیں آوازیں دی، لیکن مجھے خود بھی احساس تھا کہ میری یہ آواز چند فٹ سے زیادہ آگے نہیں جا رہی ہوگی۔ برف باری کا شور اتنا زیادہ تھا کہ آواز گھٹ رہی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے اس چٹان پر میرے سوا کوئی موجود نہ ہو۔ وہ لوگ نہ جانے کس طرف اتر گئے، کہیں ان میں سے کچھ حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن بھلا اس موسم میں ان کے لیے کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ ان کی زندگی کی دعا کروں اور اپنی زندگی کی دعا کروں اور اپنی زندگی بچانے کی فکر۔ چنانچہ ایک محفوظ سی جگہ پر میں نے اپنا خیمہ لگایا اور میں دبک گیا۔ میں سخت پریشان تھا۔ ویسے میں نے لیمپ جلا کر نیچے دروازے کے سامنے رکھ دی تھی تاکہ دوسرا کوئی شخص پہنچے تو اس روشنی کی مدد سے کوئی سمت اختیار کرے۔ برف باری بدستور جاری تھی اور راستے کا تعین کرنا خاصا مشکل کام تھا، لیکن میں گیس سے ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور چند ساعتوں کے بعد ایک بوسیدہ سے خیمے کے قریب پہنچ گیا جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ لیکن دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ خیمہ میرے کسی ساتھی کا نہیں ہے، کیونکہ میں ان خیموں کو بآسانی پہچان سکتا تھا جو ہم لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ بڑا ہی تعجب ہوا تھا کیونکہ اس سفر کے دوران ہم نے کسی اور مہم جو یا سیاح کو نہیں دیکھا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اور بھی پہاڑوں کی بلندیاں طے کر رہا ہے۔ بہرحال جو کوئی بھی تھا انسان تو ہے، اور پھر وہ کس طرح یہاں تک آیا تھا۔ یہ تجسس مجھے خیمے میں داخل ہونے سے روک نہیں سکا۔ میں اندر پہنچا تو میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جو کسی جانور کی کھال بچھائے آلتی پالتی مارے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اوپری برہنہ بدن اور گنجے سر سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی بت بخشو ہے، کوئی ایسا تارک الدنیا جس نے شاید دنیا کو چھوڑ کر یہ ویران پہاڑی آباد کر لی ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور خیمے میں جلتی ہوئی روشنی میں وہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ سوکھا ہوا بدن جس کی ایک ایک پسلی گنی جا سکتی تھی، گلے میں پڑی ہوئی بڑی بڑی منکوں کی مالا، بڑی بڑی جٹائیں، عجیب سا چہرہ۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اسے کس طرح مخاطب کروں۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزر گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور چند قدم آگے بڑھ گیا۔ پھر میں زور سے کھنکارا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ عجیب آنکھیں تھی اس کی، ویران اور بھیانک۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہوس، وہ کھرکھراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کون ہو تم؟ میں نے سوال کیا۔ روشنی۔ بدھ مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ روشنی چلائے بیٹھا ہوں، جانے کسے راستہ دکھانے کی ضرورت پیش آ جائے۔
وہ درویشانہ انداز میں بولا، دن کے وقت کیا کرتے ہو؟ روشنی دکھاتا ہوں، تمہاری باتیں اپنی سمجھ میں نہیں آتی، میں جا رہا ہوں۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ ممکن ہے میرا کوئی ساتھی۔ رک جاؤ، میں تمہارا ساتھی ہوں، تب صاف زبان میں بات کرو، مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کب سے یہاں ہو؟ صاف زبان میں سننا چاہتے ہو تو تمہارے کام کی ایک ہی بات بتاؤں گا، چلو وہی بتاؤ۔ کسی کی چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ تم نے جرم کیا ہے۔ خوب، کون سا جرم؟ ستیانہ نے عظیم تپسیا کی تھی، تب اس کی ہیرو جیسی محبوبہ مجسم ہو کر اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اسے سینے میں سجا لیا۔ اس نے دعا کی تھی کہ وہ ہوس کا پجاری نہیں ہے، بس اتنا موقع مل جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کو دل میں سمو لے۔ تب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، تو اس نے اپنا مقصد بتا دیا اور مورنا اس کے سینے میں سما گئی۔ ہاں، وہ جو تمہارے لباس میں پوشیدہ ہے کسی کا دل ہے۔ کہاں کی اڑا رہے ہو؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ میری آنکھیں تمہارے اندر جھانک رہی ہیں، لیکن تمہاری بکواس ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ جو تم نے سیاہ مجسمے کے سینے سے نکالا ہے تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ ستیانہ کی کہانی طویل ہے، مختصراً سن لو۔ اس نے ساری زندگی مورنا کو چاہا، لیکن ہیرو جیسی مورنا سیاہ ستیانہ کے لیے نہیں تھی۔ کسی نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن وہ جو اس کے لیے آہیں بھرتے بھرتے جوان ہوا، اس کے حصول کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا۔ سو اس نے دعا کی کہ مورنا اس سے مل جائے، چاہے اس سے زندگی چھین لی جائے۔ ہیرو جیسی مورنا اسے مل گئی، لیکن وہ سنگ میں بدل گیا تھا اور مورنا وہ بھی اس میں سما گئی تھی۔ تم نے ستیانہ کی زندگی چڑھائی ہے نوجوان۔ اوہ، تمہاری آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ میری مانو تو اسے واپس ستیانہ کے سینے میں سجا دو۔ فضول بکواس ہے، میں کمزور ہوں، تمہیں مجبور نہیں کروں گا، کر بھی نہیں سکتا، لیکن تمہیں مشورہ ضرور دوں گا۔ دو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ستیانہ کی امانت اسے واپس کر دو۔ ستیانہ نحوستوں کا بدھ ہے، تم اگر اس کا دل نکال لے گئے تو وہ تمہیں چین سے نہیں رہنے دے گا۔ یہ ہیرے کی گڑیا تمہارے لیے نحوست کی دیوی بن جائے گی۔ ستیانہ کے علاوہ یہ جس کے پاس ہوگی وہ سکون سے نہیں رہ سکے گا، اس لیے اسے واپس کر دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی تھی اس بوڑھے تبتی کو اس بارے میں کس طرح معلوم ہوا، جبکہ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن میں اتنے کچے ذہن کا مالک نہیں تھا کہ ان توہمات کی باتوں سے متاثر ہو جاؤں۔ جو چیز مجھے مل گئی تھی وہ بے حد قیمتی تھی اور میں کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ باقی رہی ستیانہ وغیرہ کی بات، تو وہ پتھر کا مجسمہ میرا کیا بگاڑ سکتا تھا، میں نے سوچا، اور پھر میں اس بوڑھے راہب کے پاس سے واپس چلا آیا۔ چلتے چلتے اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، نحوست کی دیوی ستیانہ کے علاوہ جس کے پاس رہے گی اس پر نحوستیں نازل ہوتی رہیں گی، اس بات کو یاد رکھنا۔ لیکن میں نے کوئی بات یاد رکھنا پسند نہیں کی اور واپس اپنے خیمے میں آ گیا۔ اب مجھے اپنے ساتھیوں کی فکر تھی، نہ جانے وہ لوگ کہاں کہاں بھٹک رہے ہوں گے اور برف کے اس طوفان نے نہ جانے ان کے ساتھ کیا اشر کیا ہو۔ بہرحال صورت یہ رات تو گزارنا تھی۔ میں کافی رات تک سو نہ سکا۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے میں نیند آئی اور میں سو گیا۔ جب جاگا تو برف باری رک چکی تھی اور مطلع صاف تھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کی تلاش ہوئی۔ میں نے جلدی سے خیمے وغیرہ لپیٹے اور پھر اطمینان کے ساتھ چٹان کے اس سرے تک آ گیا یہاں سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ وہ پورا دن مجھے تنہا نیچے اترنے میں گزارنا پڑا، پھر رات ہو گئی، لیکن پورا دن گزارنے کے بعد میرا کسی ساتھی کا پتہ نہ چلا۔ البتہ دوسرے دن صبح جب میں نیچے اتر رہا تھا تو میں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر چند افراد کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ یہ میرے ساتھی ہی تھے۔ اس وقت اسے مخاطب کرنا مناسب نہیں تھا۔ ہاں، جس سمت ہم سب جا رہے تھے وہاں ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہم سب جمع ہو سکتے تھے، اور وہاں پہنچ کر میں رک گیا۔ میرے ساتھی مجھ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے رہے۔ میرے ساتھیوں کو بھی برف باری میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بہرحال ان میں سے کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا تھا اور یہ خوشی کی بات تھی۔ ہیرو کی وہ گڑیا میرے پاس تھی اور میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنے نوازات میں شامل کر لوں گا۔ ظاہر ہے اسے فروخت کر کے دولت حاصل کرنے کی خواہش تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھی۔ کبھی کبھی بوڑھے راہب کی خوفناک باتوں کا خیال آ بھی جاتا، لیکن ان باتوں کی پرواہ کون کرتا تھا؟ میں نے ان پر توجہ نہیں دی۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں اپنے وطن میں داخل ہوا۔ میرا علاقہ ایک مخصوص حد تک شروع ہوتا ہے، چنانچہ میں اس کی سرحد تک پہنچا تو میری ملاقات چند افراد سے ہوئی اور یہ لوگ میرے خیر خواہ تھے۔ میرا ایک دوست سردار تارا سنگھ میرے نزدیک پہنچ گیا اور اس نے افسوسناک انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم؟ کیسے ہو تارا سنگھ، کیا حال چال ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا دوست میرے حال چال تو ٹھیک ہے، لیکن تم ایک طویل عرصے کے بعد وطن واپس آئے ہو۔ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ افسوس، میں بدنصیب ہی تمہیں اطلاع دینے کو رہ گیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ ہاں، کچھ سنا تھا، مگر میں ایسی باتوں پر توجہ کہاں دیتا ہوں۔ افسوس، وہ تنازع ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ تارا سنگھ نے کہا،
اور میں نے اس کا شانہ جھچوڑ دیا۔ کیا کہہ رہے ہو تارا سنگھ؟ جلدی سے کہو، تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ میرے دوست گلاب خان اور اس کے ساتھیوں نے تمہاری حویلی پر حملہ کیا تھا۔ انتہائی خون ریز تصادم ہوا، گلاب خان کے 2 بھائی مارے گئے اور تمہارے 3 بھائی بھی ہلاک ہو گئے۔ حویلی حکومت کی تحویل میں چلی گئی۔ بہت عرصے سے تمہاری تلاش کی جا رہی تھی، لیکن تمہارے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ گلاب خان غصے سے دیوانہ ہو گیا ہے اور اب وہ تمہاری تلاش میں ہے۔ اوہ، کیا بکواس کر رہے ہو تارا سنگھ؟ میں نے کہا تھا نا، میں ہی بدنصیب تمہیں یہ کہانی سنانے کو رہ گیا تھا، تارا سنگھ نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ میں نے آج تک گھریلو امور پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے بھائیوں سے محبت نہیں تھی۔ تارا سنگھ نے جو کچھ بتایا اس نے میری زندگی اندھیر کر دی۔ میرا بھرا گھر مٹ گیا تھا اور اب میں اپنے ہی وطن میں اجنبی بن گیا تھا۔ تارا سنگھ نے مجھے بہت تسلیاں دی اور مشورہ دیا میں ابھی اپنے گھر جانے کی کوشش نہ کروں۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ یوں بھی میں لڑنے بھڑنے والا جذباتی آدمی نہیں تھا۔ میں گلاب خان کے خلاف کیا کارروائی کرتا؟ چنانچہ بددل ہو کر میں نے علاقہ چھوڑ دیا اور ایک دوسرے شہر آ گیا۔ میرے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے، چنانچہ جگہ جگہ مارے پھرنے کے بعد میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ کسی کام دھندے کی عادت ہی نہیں تھی، کیا کرتا؟ فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ تب ایک دن اس قیمتی گڑیا کا خیال آیا۔ سوچا تھا اسے اپنے نوادرات میں شامل کر دوں گا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اب میں اس کا بھی کیا کروں گا؟ لیکن اس دن پہلی بار ایک اور خیال بھی میرے ذہن میں آیا، اور یہ خیال بوڑھے راہب کی پیش گوئی تھی۔ اس کی پیش گوئی کے مطابق یہ گڑیا نحوست کی دیوی تھی اور میرا خاندان تباہ ہو چکا تھا۔ کیا یہ اس کی نحوست ہے؟ اور میرے ذہن میں خوف ابھر آیا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے اس سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ لیکن میرے دوست، میں نے ہر ممکن کوشش کی، اس منحوس گڑیا نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ بار بار مجھے ایک ہی اشارہ ملتا رہا، وہ یہ کہ میں اسے جہاں سے لایا ہوں وہیں پہنچا دوں۔ لیکن اب نہ تو میرے پاس اس کے لیے وسائل تھے، نہ کوئی ایسا طریقہ جس سے میں یہ کام کر لوں۔ میرے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، اور میں تمہیں بتاؤں، بس یہ سمجھ لو میں نے بڑی بے بسی کے عالم میں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میں نے پراسرار علوم سیکھے، فاقہ کشی کی۔ میں اس مشکل سے جان بچانا چاہتا تھا، لیکن یہ کسی طور پر ممکن نہ ہوا۔ تب مجھے میرے علم نے بتایا اس گڑیا کو واپس اس کی جگہ پہنچانا اب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی غیر انسانی شخصیت انسان کا روپ دھار کر اس کے ساتھ سفر کرے تو یہ اس جگہ پہنچ سکتی ہے۔ میں سمجھا نہیں میرے دوست، میرا علم بتاتا ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ ستارہ شناسی نے مجھے بہت سی باتوں سے روشناس کرا دیا ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ ضرور حیران کن معلوم ہوگا، لیکن پراسرار علوم کا اپنا ہی ایک مقام ہے۔ میرے علم نے مجھے 2 ہی باتیں بتائی۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور برے حالات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس گڑیا سے نجات پالو۔ تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، پراتا نے کہا۔ تم اندر سے جو کوئی بھی ہو، اگر میرے ساتھ ایک مہربانی کرو تو میں تمہیں وہ ترکیب بتا سکتا ہوں جس سے مجھے اس گڑیا سے نجات مل جائے، اور ستاروں کے علم کے مطابق تم جس مشکل کا شکار ہو تمہیں اس مشکل سے نجات مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہہ رہا تھا یہ شخص۔ میری مشکل تو صرف میری امبینا تھی، امبینا مجھے مل جائے اور میں انسانوں کی اس ہولناک دنیا سے نجات حاصل کر کے وادی اشمولہ پہنچ جاؤں، بس اس کے علاوہ میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے اس کائنات میں ہر خوشی مل گئی۔ اور جب بوڑھے نے وہی کہا جو میری آرزو تھی تو میں دنگ رہ گیا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ دیکھو، میں بس ایک بات خصوصی طور پر تم سے کہنا چاہتا ہوں، وعدہ جو بھی کرو اس میں سچائی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تمہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے ہاتھ دھونا پڑے یا بدترین نقصان اٹھانا پڑے۔ چلو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، پراتا نے کہا، اور بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر نہ جانے کہاں سے وہ ایک ایسی حسین و جمیل گڑیا لے کر آیا جسے دیکھ کر انسانی آنکھ پلک جھپکانا بھول جائے۔ حسن و جمال کا بیکر تھی وہ، ہیرو کی تلاش نے ایک ایسے حسین وجود کو جنم دیا تھا کہ انسان اسے دیکھے تو پاگل ہو جائے۔ بے شک وہ ایک چھوٹی سی گڑیا تھی، لیکن اتنی حسین و جمیل کہ ناقابل یقین۔ بوڑھے نے اسے میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا علم کہتا ہے تم جس چیز کے حصول کے لیے سرگردہ ہو وہ تمہیں اس وقت مل جائے گی جب تم اس گڑیا کو اس کی منزل تک پہنچا دو گے۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ گڑیا اس سے لے لی۔ پراتا یعنی میں انسانوں کا ڈسا ہوا سانپ وہاں سے چل پڑا۔ گڑیا کو اپنے پاس رکھنے کے لیے مجھے انسانی وجود میں ہی رہنا پڑا۔ پہلی بار امید کی ایک کرن روشن ہوئی تھی۔ بوڑھے نے یا تو مجھے بیوقوف بنایا تھا اور اپنی مشکل میرے سر ڈال دی تھی، لیکن اگر اس نے مجھے بیوقوف نہیں بنایا ہے تو میں 1000 بار اپنی امبینا کو حاصل کرنے کے لیے ایسی وادیوں کا سفر کر سکتا تھا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو ایک سانپ کی حیثیت سے ان وادیوں میں جا سکتا تھا، لیکن گڑیا کو بھی سنبھال کر رکھنا تھا۔ نقشے میری رہنمائی کر رہے تھے۔ راستے میں بہت سے ساتھی ملے، لیکن ظاہر ہے میں ان سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔
आखिरकार मैं इस जगह पहुंच गया जिसके बारे में मुझे बताया गया था। वो जगह मुझे नजर आ गई और मैंने इस हसीन गुड़िया को इसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। और इसे मैं अपनी तकदीर ही कह सकता हूँ या फिर देवताओं का एहसान कि वहीं मुझे एक इंसानी वजूद नजर आया। ये इस जगह की पुजारन थी और जब इसने रुख बदल कर मेरी तरफ देखा तो न जाने क्यों मेरा दिल सिमटकर बंद होने के करीब हो गया। यह हसीन लड़की तो बिल्कुल इसी गुड़िया की मानंद थी, भरपूर जवान। इसने मुझे देखा, देखती रही और फिर अचानक इसने अपने हाथ बुलंद किए और इसके जिस्म से धुआं खारिज होने लगा। मैं हैरत और खुशी से उछल पड़ा था। बूढ़े ने पेशन गोई तो की थी कि मुझे मेरी मंजिल वहां मिल जाएगी और अम्बीना मेरा इनाम होगी। यह तो सच ही साबित हो रहा था। थोड़ी देर के बाद तलस्मी वजूद मेरे सामने आ गया, हसीन नागिन जो अम्बीना के सिवा और कोई नहीं थी। मैंने एकदम रूप बदला और जब मैं सांप के रूप में आया तो अम्बीना दौड़कर मुझसे लिपट गई। वो इस तरह मुझसे लिपटी थी कि मेरे वजूद का ही हिस्सा बन गई थी। हमें इस तरह कहकों में डूबे हुए एक तवील वक्त गुजर गया। हमारे जज्बात बेज़बानी की ज़बान से एक दूसरे से दूरी की कहानी सुना रहे थे। न जाने कब अम्बीना ने खुद को संभाला और मुझसे बोली, देख लिया ना पराता, अपनी ज़मीन अपनी वादी छोड़ने का नतीजा। आह, न जाने कैसी कैसी मुश्किलात से गुजरे होंगे। ये इंसान तो बड़े जालिम, बड़े संगदिल होते हैं। वो हमें मोजी कहते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा मोजी शायद रूह ज़मीन पर दूसरा जानदार ना हो। पराता, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें गुजरी हैं। आह, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे यकीन नहीं था पराता कि तुम मुझे इस तरह मिल जाओगे। इंसानों की इस दुनिया से भागकर मैंने ये वीराने अपनाए थे और न जाने क्यों मेरे दिल की यह आरज़ू थी कि एक दिन तुम मुझे यहाँ नजर आओगे। आखिर तुम आ गए पराता। चलो वादी अशमूला चले। हमारी उम्रें अगर 10,000 साल भी हो जाएं तो कभी भूल कर भी मत सोचना कि अपनी जून बदलोगे और इंसानी जून में आओगे। असल में इस दुनिया में रहने वाले इंसान खुद अपनी जून बदल चुके हैं और 1000 साल की उम्र ना होने के बावजूद ये लोग सांप से ज़्यादा मोजी हो चुके हैं। इनसे बड़ा सांप इस कायनात में और कोई नहीं हो सकता। आओ चले। वापसी का सफ़र बड़ा ही खुशगवार था। वादी अशमूला के सांप जौ के दूं थे और अपनी दुनिया में हसीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। तब बुजुर्ग सांपों ने कहा, अपनी सरजमीन अपना घर छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो तुमने की, लेकिन अच्छी बात है, कम अज़ कम अब तुम दूसरे इच्छाधारियों को यह बता सकोगे कि इंसानी जून कभी ना बदलना, बाकी चाहे कुछ भी बन जाओ। नाग देवता का यह खूबसूरत नावल और पराता और अम्बीना का यह सफ़र अपने अख्ताम को पहुँचता है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह नाग देवता का नावल कैसा लगा। किसी और नए नावल के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।